Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And currently we are doing a revision series of class 12 NCERT Geography. And we are on the book Fundamentals of Human Geography. Parallel to this, there is a series going on a detailed course of class 12th Geography. And in that series, we are currently studying India, People and Economy. So if you want to refer to that book, you can go through go and search on the channel. You will easily find the playlist. So this is a revision series, and in this series, we have already covered 3 chapters from this book, and this is the 4th one. So in this video, part 1 of this chapter is also over, and today we would be starting and talking about part 2 of this chapter, which is the human development. So in the previous class, we talked about pillars of human development. What is human development? We talked about Dr. Mehmood Haq, and we talked about Dr. Amartya Sen and their study about human development. We talked about the concept of choices, like how these choices impact the lives of human and how these choices make human development different and possible. Today we would be talking about approaches to human development, which means like how to approach, how to calculate human development. So 4 major ways to calculate human development are income approach, welfare approach, basic needs approach and capability approach. So we will be talking in detail about all the 4 approaches. So there is a table in this book which is this one. So in this table, first is your income approach. This is the one of the oldest approaches. मतलब कि बहुत पुराना अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करने का. नाम से ही समझ में आ रहा है इनकम की बात हो रही है. तो ये देखता है जितना ज़्यादा लोगों का लेवल ऑफ इनकम होगा, जितना ज़्यादा इंसान के पास कैपेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा वो पैसा कमाता होगा, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टू अर्न, टू गेट रिसोर्सेज फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो द आइडिया ये कहता है कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो रिफ्लेक्ट करेगी लेवल ऑफ फ्रीडम. ऑब्वियसली आपकी जितनी ज़्यादा आप 10 रुपये कमाओगे तो आप यू विल नॉट बी फ्री टू बाय एप्पल कॉस्टिंग 25 रुपीज़. सो आप हम अपनी इनकम के हिसाब से हमारी फ्रीडम एक्सरसाइज करते हैं टू बाय थिंग्स, टू परचेज थिंग्स. सो हायर द लेवल ऑफ इनकम, जितना ज़्यादा इनकम होगा उतनी ज़्यादा आपकी हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट इज योर वेलफेयर अप्रोच. वेलफेयर नाम से समझ में आ रहा है वेलफेयर. अभी वेलफेयर कौन करेगा? गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो वेलफेयर करे. ये अप्रोच देखती है ह्यूमन बींग्स को एज बेनिफिशरीज. बेनिफिशरीज मतलब वो लोग जो एक्चुअली में बेनिफिट उठाने वाले हैं. सो ह्यूमन बींग्स आर सीन एज बेनिफिशरीज इन दिस केस. और ये अप्रोच देखती है जितना ज़्यादा सरकार खर्चा करेगी, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सेफ्टी पे, सोशल सेकेंडरी एंड एम्यूनिटीज़ पे, पीपल सिर्फ उतनी ज़्यादा हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होगी. सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक मेयर पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं डेवलपमेंट के, बल्कि पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं. मतलब वो ह्यूमन डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट के फ़ायदों को बोर करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं. सो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा इन दी लाइन ऑफ वेलफेयर, उतनी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So the human development, the government responsible होती है increasing levels of human development in maximizing expenditure on welfare. Welfare में maximizing expenditure के लिए human government expenditure is responsible. Next is your basic needs approach. ये basic needs approach, ये idea जो था, ये International Labour Organization ने propose किया था. इस केस में जो कुछ 6 basic needs होती हैं हर किसी की, that is your health, education, food, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग. आई एम रिपीटिंग अगेन. आपकी हेल्थ, आपकी पढ़ाई लिखाई, दैट इज एजुकेशन, खाना, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, साफ सफाई और हाउसिंग. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी 6 बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि सबको चाहिए होती हैं. और इस केस में, बेसिक नीड्स के केस में, जो क्वेश्चन है ऑफ चॉइस उसको इग्नोर करा जाता है और एम्फेसिस किया जाता है कि लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराई जाएँ, और बेसिक नीड्स अगर होंगी तो उनको ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर कैपेबिलिटी अप्रोच. ये अप्रोच स्पेसिफिकली प्रपोज करी थी डॉक्टर अमर्त्य सेन जी ने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने. एंड ही इंसिस्टेड दैट
बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, लोगों की कैपेबिलिटी, लोगों की क्षमता आप इतनी बढ़ा दो कि वो अपने लिए रिसोर्सेज खुद एक्सेस कर सकें, वो अपने लिए हेल्थ रिसोर्सेज खुद एक्सेस कर सकें, एजुकेशनल रिसोर्सेज खुद एक्सेस कर सकें, इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। और आप अगर लोगों की कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता बढ़ा दोगे तो अपने आप वो अपने लिए ह्यूमन डेवलपमेंट फाइंड आउट कर। नेक्स्ट इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हो गई है तो उसको मेजर कैसे करना है, पता कैसे चलेगा कौन सी ऐसी कंट्री है जो जहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, अच्छा है, एंड कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट कम है। तो इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो सारी कंट्रीज़ को रेट करता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे, हेल्थ, education and access to resources. I'm repeating once again, health, education and access to resources. These are some of the questions जो competitive exams में regularly पूछे गए हैं. I was talking about basic needs approach. This was a question in serious examination in 2021 paper first. So these questions form the MCQs of your competitive exams as well. So again, what are the parameters of human development index can be asked, and that is your health, education and access to resources. So all these 3 are checked in a country, and then the country is rated between 0 to 1 on the basis of performance they do. So the indicator chosen to access health, अभी इनके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। हेल्थ के अंदर ऐसे हेल्थ कैसे पता चलेगा किसी का, तो उसके अंदर देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब आप पैदा हो रहे हो तो कितनी उम्मीद है कि आप कितने वर्ष तक जियोगे, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो हेल्थ की कैटेगरी में जो पेरीमीटर है, दैट इज़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि आप कितने साल तक जियोगे, दैट इज़ योर इंडिकेटर। जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होती हैं, उतनी ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। अडल्ट लिटरेसी रेट, कि आपकी कंट्री में, आपकी जगह में कितने अडल्ट लोग 18+ हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनका लिटरेसी रेट क्या है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज कितने लोगों ने स्कूल में एडमिशन लिया, दैट इज योर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये नॉलेज रिप्रेजेंट द एक्सेस टू नॉलेज, कि नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। द नंबर ऑफ एडल्ट हु कैन आर एबल, एडल्ट लिटरेसी रेट की इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि नंबर ऑफ एडल्ट जो कि लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनका स्कूल में एडमिशन हुआ है, उसको शोज़ हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट, कि कितना आसान और डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए अपने लिए एजुकेशन को गैदर करना, अपने लिए एजुकेशन को एक्सेस करना, नॉलेज को गैदर करना। एंड देन एक्सेस टू रिसोर्सेज हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या होती है, आपकी खरीदने की शक्ति, आप किसी चीज़ को खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। माई सैलरी इज़ 100 रुपीज़, क्या मेरी परचेजिंग पावर है 200 रुपये का सामान खरीदने की? नहीं है, मेरी परचेजिंग पावर इज़ 80 रुपीज़, 80 होगी। 100 कमाती हूँ तो 80 ही परचेजिंग पावर होगी, 20 में आई वुड लाइक टू सेव, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट समवेयर। तो परचेजिंग पावर आपकी इनकम से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। सो आपके परचेजिंग पावर के टर्म्स में चेक किया जाता है कि आप एक्सेस टू रिसोर्सेज कर सकते हो या नहीं, कैन यू गैदर रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ और नॉट। ये सारे जितने भी डायमेंशंस हैं इनका 1/3 रेशियो होता है, और 0 to 1 के केस में जितना ज़्यादा आपकी रैंक 1 के पास आएगी या 1 होगी, उतनी ज़्यादा आपकी हायर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, और जितना आप 1 से दूर होंगे और 0 के करीब होंगे, उतनी लोअर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। जो अटेनमेंट्स चेक करती है कि लोगों ने कितना अटेन, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ये चेक करती है कि लोगों ने कितना अटेन, अपने लिए कितना अटेन कर लिया है। ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट की की एरियाज़, बट ये एक बहुत रिलायबल मेजर नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता है कि किसको कितना मिल रहा है, एक्चुअली में जो उसका फ़ायदा हो रहा है वो सबको हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इस इंडेक्स में नहीं आता है। तो इसी के लिए एक अनदर इंडेक्स विच एक्चुअली fulfills the problem which human development index had is human poverty index। ये जो human poverty index है ये human development index से कहीं ना कहीं related होता है, और ये human development index की shortfall, यानी कि जो कमी है human development index में, उसको fulfill कर देता है human poverty index। ये एक नॉन इनकम मेजर है। नॉन इनकम मेजर का मतलब ये इनकम को ध्यान नहीं, पॉवर्टी के केस में ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी मेजर कर रहा है बट इनकम मेजर नहीं है, मतलब आप कितना कमा रहे हो या कितना कम कमा रहे हो उस चीज़ को ये ध्यान नहीं देगा, इनकम मेजर नहीं है ये।
इसमें चेक किया जाता है कि आप क्या 40 ईयर्स के बियॉन्ड जीने की आपकी उम्मीद है या नहीं है, कि विल यू बी एबल टू सर्वाइव बियॉन्ड 40 और नॉट। आपका एडल्ट लिटरेसी रेट चेक किया जाता है, इलिटरेसी रेट चेक किया जाता है, नंबर ऑफ़ पीपल, वो लोग जिनके पास पानी नहीं है साफ, जिनके पास जिनके छोटे बच्चे अंडर वेट हैं, अंडर नरिश्ड हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, तो उस केस में जितने ज़्यादा ये क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स खराब आएगा। ऑफन जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो ज़्यादा रिवीलिंग होता है। रिवीलिंग मतलब इससे हमको ज़्यादा क्लियर फैक्ट्स, सच्चाई पता चलती है रादर दैन योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जब हमने इंडिया के बारे में देखा था अबाउट इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हमने उधर भी वी सॉ दैट हाउ जो डेवलपमेंट है इट इज़ क्लास बेस्ड, इट इज़ कास्ट बेस्ड, इट इज़ नॉट कमिंग फॉर एवरीबडी, इट इज़ कमिंग जस्ट फॉर अ फ्यू प्रोपोर्शन ऑफ पीपल। सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक बेटर क्लियर पिक्चर देता है अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। There is this box. Since 1990 the United Nations Development Program, that is your UNDP, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं हर साल। ये जो रिपोर्ट है ये रैंक वाइज सारी कंट्रीज़ को, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, किसकी मेंबर कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको उनके लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से रेट करता है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ये दोनों ही इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के जो UNDP यूज़ करता है। इन दोनों मेजर्स को जब हमने देखा, जब हम क्लियरली एक साथ देखते हैं तो हमको एक एक्यूरेट पिक्चर पता चलती है जो कि सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो हमने 4 तरीके पढ़े, और भी नए नए तरीके हमेशा आते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स को कैप्चर करते हैं और इनकी रिसर्च होती रहती है। रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम के बीच में भी एक कनेक्शन ढूंढना है। डिस्कशन चलता रहता है कि एक पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स भी होना चाहिए, कि क्या सोसाइटी में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली फ्री हैं टू मेक देयर डिसीजंस और नॉट। क्या आप कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सोच सकते हैं? एंड इफ येस, सो आई वुड लव यू to please answer in the comment section if you have any idea in your head which can actually count which should be used to calculate the human development index. नेक्स्ट इज़ भूटान। भूटान इज़ दी ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड, जो भूटान है वो एक लौती कंट्री है इस वर्ल्ड में जो ऑफिशियली प्रोक्लेम करती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस हम लोग सब लोग GDP निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, बट जो भूटान है दे केम अप विद ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये एक मेजर है जो कंट्री की प्रोग्रेस को कैलकुलेट करता है। मटीरियल प्रोग्रेस की बात नहीं हो रही है इधर, मतलब पैसे की बात नहीं हो रही है, बट दे एक्चुअली कैलकुलेट मटीरियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। दे मोर कॉशियसली टेक कंसिडर इन पॉसिबल हार्म दे माइट ब्रिंग, और वो देखते हैं कि ये चीज़ें मटीरियल गुड टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट को किस तरह से हार्म करती है, और एक्चुअली में ये लोगों के कल्चर को, भूटानीज़ की स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से हार्म कर रही है। ये देखते हैं, ये कल्चर ये देखता है कि कितनी आपने मटीरियल प्रोग्रेस करी लोगों को दुख पहुंचाकर। मतलब अगर आपने लोगों को इतना दुख पहुंचाया, आपने लोगों को 10% दुख पहुंचाया और आपने अगर 10% मटीरियल प्रोग्रेस करी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। योर मटीरियल प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सैडनेस ऑफ अदर्स। दूसरों की सुख लेकर आपकी अगर वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ये लोगों को इनकरेज करता है कि आप स्पिरिचुअली सोचिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए ना कि क्वांटिटी। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कंपैरिजन्स। इंटरनेशनल कंपैरिजन मतलब अब बाकी सारी कंट्रीज़ को देखेंगे, कंपेयर करेंगे किसका ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, ज़्यादा है, कम है, ऑल दीज थिंग्स। इंटरनेशनल कंपैरिजन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेंगे आपको। कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात ये बोली है कि जो कंट्री का साइज़ होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट जनरली दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंट्री अगर बहुत ह्यूज है साइज़ में तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा हो, बल्कि जनरली हमने इसका अपोजिट होते हुए देखा है। क्योंकि फर्स्ट थिंग, जितने कम लोग होंगे मैनेज करने के लिए उतनी सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी, उतनी ही ज़्यादा सरकार पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाएगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, कास्ट, क्लास, ये सारे डिफरेंसेस आते हुए हमें दिख जाते हैं। सो स्मॉलर द साइज ऑफ कंट्री द बेटर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज।
सो इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि सम देयर आर कंट्रीज नियर टू इंडिया, श्रीलंका, ट्रिनिडाड टोबैगो, जिनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इंडिया से बहुत हायर है, बल्कि इंडिया जो है एक्चुअली में उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी देयर आर स्टेट जैसे कि केरला जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टेट जैसे कि पंजाब और गुजरात से ह्यूमन डेवलपमेंट में, बल्कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो पर कैपिटा इनकम, मतलब इंसान की भले इनकम ज़्यादा नहीं है, बट देयर ह्यूमन डेवलपमेंट, देयर लिटरेसी रेट, देयर एजुकेशन, देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज इज़ वेरी गुड कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो अब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो कि लो इन ह्यूमन डेवलपमेंट होती हैं, लो इन ह्यूमन डेवलपमेंट जिनका स्कोर कितना होता है, बिलो 0.554। मीडियम कंट्रीज़ होती हैं जिनका जो स्कोर होता है वो बिटवीन 0.555 अप टू 0.701 तक होता है। हाई होती हैं जिनका बिटवीन 0.702 अप टू 0.801, और वेरी हाई हो गई जो कि 0.802 से अबव चली गई, वो आपकी वेरी हाई ऑन दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाती है। वो सारी कंट्रीज़ जिनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनका स्कोर 0.808 से अबव होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो 2018 में आई थी, इस ग्रुप में आती हैं आपकी 59 कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि विच आर इन दी वेरी हाई कैटेगरी, और टॉप 10 कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जर्मनी, आयरलैंड, यूएस, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। देन ये जो हाई लेवल ऑफ, पहला वेरी हाई कितनी कंट्रीज़ में था, 59 कंट्रीज़ में था। नाउ जो हाई लेवल में आती हैं वो हमारी 53 कंट्रीज़ आती हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। तो और ये हाई में क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपनी हेल्थ केयर पे, अपनी एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट करने की कोशिश की है और इसको अपना इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट बनाया है। जो कंट्रीज़ हायर होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में वो बहुत इन्वेस्टमेंट करती हैं इन सारे सेक्टर्स में। ऑल टुगेदर यहाँ पे जो लोग होते हैं, लोगों पर इन्वेस्ट किया जाता है। गुड गवर्नेंस की वजह से ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक दूसरे से, मतलब बाकी सारी कंट्री से अपार्ट हो जाती हैं। You will notice that many of these countries have been the former imperial power. आप देखोगे जनरली जो कंट्रीज़ जो हाई उसमें हैं वो पहले इंपीरियल पावर्स थी। इंपीरियल पावर्स मतलब दूसरों पे कंट्रोल करी हुई थी। इंपीरियल कोलोनाइज कंट्री कौन सी हो गई, जो पावर के अंडर आ गई थी, जैसे कि इंडिया हो गया, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हो गई। बट इंपीरियल कंट्रीज कौन सी होती हैं, इंपीरियल पावर्स जो पावर करती हैं, जो पावरफुल होती हैं और जो उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको हम इंपीरियल पावर्स बोलते हैं। तो जनरली ये जो हाई वाले रेशियो में जो कंट्रीज़ हैं, दे आर फ्रॉम दे वर फॉर्मर इंपीरियल पावर्स, ये पहले की इंपीरियल पावर्स थी। सोशल डाइवर्सिटी इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जनरली जितने भी लोग हैं वो सेम रिलीजन या सेम, उनका रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरली लोकेटेड इन यूरोप में लोकेटेड हैं, और वेस्टर्नाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि वेस्टर्न और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा भी, यूरोप के अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि इस हाई ग्रुप का पार्ट बनती हैं, और ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो कि इस हाई ग्रुप का पार्ट नहीं है। वेयर इज़ बोथ द मिक्स्ड पिक्चर इन दिस केस। जो मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात अगर करें तो ये सबसे लार्जेस्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है। कुछ अराउंड 39 कंट्रीज़ हैं इसमें जिनका मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। मोस्ट ऑफ ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुई हैं। तो इंडिया कौन सी में आ गया, इसमें आ गया, वी इमर्ज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो कुछ कंट्रीज़ जो इस ग्रुप की हैं ये पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, इंपीरियल पावर्स हाई वाले ग्रुप में हैं, कॉलोनीज मीडियम वाले ग्रुप में है, जिसको वो कैप्चर करके गए थे। तो जनरली ये कॉलोनीज रह चुकी हैं, फॉर्मर कॉलोनीज थी, और अदर्स वाइल अदर्स जो सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ था 1990 में, उसमें से टूट के अलग कंट्रीज बनी थी। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो रैपिडली, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो इम्प्रूव हो रहा है। स्कोर बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बन रही हैं और सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम। मोस्ट ऑफ ये जो कंट्रीज़ हैं इनका जो मच हायर सोशल डाइवर्सिटी, इन कंट्रीज की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू दी कंट्रीज़ विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स, कंपेयर टू वो कंट्रीज़ जिनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है वो काफ़ी कम है।
मैनी इन दिस ग्रुप हैव फेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो मीडियम वाले ग्रुप में इन कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। सारी जनरली जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से नहीं है, सोशल अपराइजिंग्स होती रहती हैं, ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं, कोई सरकार से लड़ रहा है, कोई आपस में लड़ रहे हैं, रिलीजन, कम्युनिज्म, क्लास बेस्ड, कास्ट सोसाइटीज़, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि ये आज भी कंट्रीज़ मीडियम वाले स्टेज में ही फंसी हुई हैं। एज मैनी एज 38 कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट बनती हैं। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ये जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब यहाँ पे सरकारें नहीं बन पा रही हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर की सिचुएशन रहती है, फेमाइन खाना नहीं है, डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर, दैट इज़ वाई दे आर इन दी लो कैटेगरी। बहुत ज़रूरी अर्जेंट नीड है कि इन सारी जगहों में ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट को जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए थ्रू आउट पॉलिसीज, मतलब अच्छी पॉलिसी सोची जाए और इन कंट्रीज़ को डेवलपमेंट पे लाया जाए। जो इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम ब्लेम करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट कम या ज़्यादा है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से। फॉर एग्जांपल एक्स कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अच्छा है, ले लेते हैं यूएस का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है क्योंकि वहाँ पे सब लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। अफगानिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट लो है क्योंकि वहाँ पे सब लोग मुस्लिम्स हैं। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। रिलीजन एक्चुअली में आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंडिकेट नहीं करता है। ये सारी चीज़ें मिसलीडिंग होती हैं, ये आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं। अगर आपने देखना है कि क्यों किसी रीजन में हाई या लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो बहुत ज़रूरी है आप वहाँ देखें कि सरकारें क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस में है। अफगानिस्तान का अगर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही है, वहाँ पे तालिबान है, वहाँ पे जो सरकार है वो डिफेंस गन्स खरीदने में, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने में पैसा वेस्ट कर रही है, ना कि लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो दीज आर दी रीजंस। रिलीजन रीज़न नहीं होता है, बट सरकार कहाँ पैसा लगा रही है, सरकार का पैसा इन्वेस्ट किधर हो रहा है, दैट मेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली पॉजिटिव। सो द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है उस कंट्री का, लोगों को फ्रीडम है या नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर क्रूशियल टू डिटरमाइन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। वो कंट्रीज़ जिनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है वो अपने लोगों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, उनके सोशल सेक्टर्स में, और जनरली ये जो कंट्रीज़ होती हैं इनमें किसी भी तरीके की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, टर्मोइल, क्राइसिस, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली, जितना ज़्यादा हो सबको इक्वली नहीं बांटे जा सकते, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी हाइपोथेटिकल एंड यूटोपियन, बट जनरली कोशिश करी जाती है कि जितना मैक्सिमम इक्वली हो सके किया जाए। ऑन दी अदर हैंड वो जगह है जहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी लो होता है, यहाँ के लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रादर दैन सोशल सेक्टर्स। ये दिखाता है कि कंट्रीज़ जो कौन से, अभी इंडिया ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो एक प्राइम लोकेशन है, आसपास पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है। सो वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एंड दैट टू सम ऑफ देम आर वेरी हॉस्टाइल टू। सो हमें डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, वी कैन नॉट एस्केप डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ पे हैं वो कंट्रीज़, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या नहीं है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इनिशिएट हुई भी है या नहीं। So while talking about human development, some things you will have to note is that human development जो होता है ये तभी आएगा जब ग्रोथ होगा, बट हर बार जब ग्रोथ होती है तब ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती है। Then we talked about Professor Amartya Sen and Dr. Mehboob ul Haq from Pakistan, Amartya Sen from India, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करी, लोगों की चॉइसेस के बारे में बात करी, इन चॉइसेस को बढ़ाना कैसे है, कैसे लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करनी है उसके बारे में बात करी। देन वी टॉक्ड अबाउट 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो थे इक्विटी, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर कास्ट को। हमने सस्टेनेबिलिटी की बात करी कि आप जो भी यूज़ करें वो इस तरह से यूज़ करें कि आपके आगे आने वाली जनरेशन को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और उनको भी सेम एक्सेस टू रिसोर्स हो जो आपको है। थर्ड वी टॉक्ड अबाउट द
प्रोडक्टिविटी फैक्टर कि जब तक लोगों के पास एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगा, तब तक उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड फोर्थ वी टॉक्ड अबाउट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है आपके पास इतनी पावर होना कि आप अपने डिसीजन, आप अपने खुद की चॉइसेस खुद के लिए ले सकें। ये एम्पावरमेंट कहाँ से आएगी आपको? जब आपके पास फ्रीडम। टुडे वी टॉक्ड अबाउट अप्रोचेस कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हायर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हायर द ह्यूमन डेवलपमेंट, basic availability of basic needs to everybody would ensure that human development is with everybody. And if person have capability, be it economic capability, political capability, social capability, would ensure higher human development. We talked about how we can calculate human development. There was a ratio between 0 to 1. We talked about human poverty index, that how things which are not actually with people should be considered for human development rather than which are with them. So we talked about gross national happiness index, which is published by Bhutan every year, and Bhutan is the only country which published such data. And we did some international comparisons in which we talked about why some countries typically have high rate of human development, why some have medium, some have high, some have very low, some have very high, and what are the possible reasons of these highs and lows, and what are the reasons which do not actually lead to less or high human development. So that's it for this chapter. If you like the video, please hit the like button, to subscribe the channel, and you can please comment, compliment or suggest anything in the comment section you want to. And thank you and have a nice day.